Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए, जिनकी को प्रेयर करना है करके अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। I do not see any hand raised. Okay, Vipul Prabhu ji, Hare Krishna. Prayers. हरे कृष्ण। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अभी स्टार्ट करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम, समझने का प्रयास। परंतु उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात सुन लें, समझने का प्रयास करें और जीवन में लगाने का प्रयास करें तो अच्छा है। देखिए, दो बातें हैं। इनफैक्ट दो अलग अलग तरीके की बातें हैं। चलिए, एक बात वो बताते हैं जो हृदय के सबसे ज्यादा क्लोज है, बाकी दूसरी बात बाद में बताएंगे।
नहीं, क्लोज वाली बात बाद में, क्लोज वाली बात बाद में। तो आज की नहीं, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के डिसाइपल, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के डिसाइपल की बातें सुन रहे थे। उनका कहना यह था कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका लक्ष्य, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका लक्ष्य यही है कि हम चैंटिंग करें, हम नाम जप करें। नाम जप कैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग जान रहे थे, क्लास में जान रहे क्या ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑफेंसलेसली चैंटिंग कहने का मतलब है अपराध मुक्त, और दो चीज और जोड़ दीजिए क्योंकि वो दोनों जोड़े बिना कंप्लीट नहीं होगा, उपाधि मुक्त और अहंकार मुक्त। सब चीज का लक्ष्य क्या है, चाहे हम श्रवणम कर रहे हैं, कीर्तनम कर रहे हैं, वंदनम कर रहे हैं, अर्चनम कर रहे हैं, सबका लक्ष्य क्या है, कृष्णा का नाम जप। देखिए समझिए इस बात को, कृष्ण नाम जप करना क्यों, और मालूम है क्या, लोग है ना बहुत सहजता से, सहजिया बनना बड़ा आसान होता है, लोग बहुत सहजता से एक बात बोलेंगे, प्रभु जी देखिए नाम जप करना ही लक्ष्य है ना, हम नाम जप कर लेंगे, नाम ही जप करना है ना। एक्चुअली में नाम जप होगा नहीं, जो नाम जप करने के लिए बोल रहे हैं वो नाम जप होगा नहीं। कोई कितना ही बोल ले कि हम नाम जप कर लेंगे, वो नाम जप नहीं करेगा, वो नाम जप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नाम तो जपेगा, साथ के साथ अपराध भी करेगा। अपराध रहित नाम जप करेंगे तो लाभ है, अपराध युक्त नाम जप करेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हाँ शुद्धता आएगी। अगर कोई अपराध के साथ भी नाम जप कर ले, कृष्णा बड़े कृपालु है, कृष्णा बहुत कृपालु है, इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु उनसे भी ज्यादा कृपालु। तो हम नाम जप कर लें तो लाभ होगा, परंतु नाम जप कर लें तो मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नाम जप हो जाए तो हम कृष्णा प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मात्र नाम जप करने से कृष्णा प्राप्ति, प्लीज समझिए, दो अलग अलग लाइंस है ना। नाम जप करने से ही कृष्णा प्राप्ति होगी, मात्र नाम जप करने से कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी। विरोधाभासी लग रहा है नहीं, दोनों एक ही है। नाम जप करने से ही कृष्णा प्राप्ति होगी और कोई मार्ग नहीं है, परंतु मात्र नाम जप करने से कृष्णा प्राप्ति होगी नहीं। हम अपराध करते हुए भी अगर कृष्णा का नाम जपेंगे तो डेफिनेटली हम सुधार के मार्ग पे चलेंगे, परंतु सुधार के मार्ग पे चलेंगे, सुधर नहीं जाएंगे, फिर भी अपराध करते रहेंगे। पिता कृपालु होते हैं, पुत्र के बुरे कार्यों को भी क्षमा कर देते हैं, ठीक है मूर्ख है मेरा पुत्र है ना, बड़ा मूर्ख है, कोई बात नहीं, मूर्ख है। परंतु इसका अर्थ ये है क्या कि पुत्र का कार्य सही हो गया, पुत्र का मूर्ख पूर्वक कार्य करना सही हो गया, क्योंकि पिता कृपालु है तो पुत्र मूर्ख पूर्वक कार्य करता रहे है? पिता को कष्ट ही दे रहा है, तो मात्र नाम जप करें और हम भगवान को कष्ट दें। देखिए आज जो वीडियो शेयर किया ना, बहुत 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 करीब है, और अगर वो हम ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक जीवन में लगाएं, इसीलिए बोलते हैं शुद्ध भक्ति के प्रयास ग्रुप में रहिए और सुना कीजिए, जो भी भेजते हैं ध्यान पूर्वक सुना कीजिए।
अगर बस वो जीवन में लगाते रहें और इस बात को समझें कि कृष्णा हमारी सुन क्यों नहीं रहे, कृष्णा हमारी सुन क्यों नहीं रहे, बस इस बात को समझे, हम धीरे 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 अपराध मुक्त जीवन की तरफ चलते चले जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो हमको बिना अपराध के नाम जप करना है, परंतु यहीं पे बात फंस जाती है। हम लोग कितना भी प्रयास कर ले, हम अपराध ही करते रहेंगे। जैसे कृष्णा बोलते हैं ना, मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। हम लोग सुनते हैं इनिशिएशन, है ना? इनिशिएशन में क्या होता है, कोई शरणागत हो जाता है और शरणागत होने के बाद क्या होता है, समस्त पाप गुरु ले लेते हैं। परंतु ये आप ये मत समझिएगा अब हो गया, आप भगवत धाम चले गए, इससे भी आपका कोई लाभ नहीं होगा। कृष्ण कृपा मूर्ति जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बता, लोग कैसे हो चले हैं, लोग हो चले हैं कि हम तो पाप करेंगे, और पाप करने के बाद जीसस का नाम लेंगे। क्रिश्चियनिटी में जीसस का नाम लेते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बोला जाए तो देवी देवता का नाम लेते हैं। हम तो पाप करेंगे, और भगवान के भिन्नांश का नाम लेंगे, भगवान के भिन्नांश भगवान से भी ज्यादा कृपालु हो जाएंगे, और वो कृपावश हमको अपना जो आशीर्वाद प्रदान कर देंगे, और हम क्या होंगे, हम अपराध मुक्त हो जाएंगे। हमने जो अपराध किया है वो अपराध मुक्त हो गए, और अब हम अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। नहीं 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 नहीं, मात्र इतना नहीं कि आपने जो गत जन्मों में या अभी तक जो अपराध किए हैं उस अपराध से मुक्त हो गए तो आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे, इतने पे भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप कल तक के तो सारे अपराधों से मुक्त हो गए, मान लिया, अगर किसी ने कृपा भी कर दी है। आजकल क्या होता है, आजकल इसीलिए लोग दीक्षा लेते हैं, सीक्रेट है, अब लोगों को मालूम ही नहीं होता, दीक्षा का अर्थ ही नहीं समझ रहा। दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के कहे अनुसार भिक्षु भिक्षु जीवन जीना, और हमारा सारा गुरु का हो जाना, दीक्षा का अर्थ है। देखिए, दीक्षा कोई एक समारोह नहीं है, लोग एक समारोह में बदल दिए, समय काल और परिस्थिति के अनुसार वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? परंतु दीक्षा का अर्थ मात्र इतना होता है कि शिष्य के हृदय से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और गुरु का स्वीकारिता कि ये मेरा शिष्य है, बस यही है दीक्षा। ऑफिशियली इसको बोल देते ये दीक्षा, गुरु स्वीकार कर ले कि ये मेरा शिष्य है। परंतु एक बार जब हम गुरु को स्वीकार कर ले, गुरु हमको स्वीकार कर ले, बस उसके बाद हमारा कुछ भी हमारा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, हम जब गुरु के प्रति समर्पण करते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गुरु जिस मार्ग पे हमको चला दे, हम उस मार्ग पे चलने के लिए तैयार, हम उस मार्ग पे चलने के लिए तैयार, वो हमें हाथ पकड़ के चला दे, हम चलने के लिए तैयार।
आजकल लोग दीक्षा का भी अर्थ नहीं समझते, तो कुछ भी समझने लग जाते, मनोकल्पना से कुछ भी, काल्पनिक रूप से कुछ भी अच्छा जो लगे वो समझ लेते, उसका अर्थ ही नहीं हो। पहले भी बताया था, फिर से बता देते हैं। देखिए, प्लीज समझिए, हमारा लक्ष्य भगवान के मूल व्यक्तित्व से अपना संबंध पुनर्स्थापित करना है। हमको भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित करना है। हमारा मुक्ति लक्ष्य नहीं है। हमारा ब्रह्म प्रकाश में हम उसमें क्या एकाकार हो जाए, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। मर्ज इनटू ब्रह्मन एफिलियंस, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए, हमारा वो भी लक्ष्य नहीं। प्रेममयी सेवा, कृष्णा की प्रेममयी सेवा में लग जाए, प्रेममयी आदान प्रदान में लग जाए, क्योंकि हमारा इच्छा क्या है, हम सभी की दृढ़ इच्छा क्या है, आंतरिक इच्छा क्या है, भूख क्या है, अभिलाषा क्या है, चाह क्या है, हम सभी प्रेम चाहते। हम अपना संबंध भगवान से, प्रेम संबंध पुनर्स्थापित कर ले, हमारी ये लक्ष्य है। अब जब ये लक्ष्य है तो हमको भगवान चाहिए। परंतु अगर दीक्षा का अगर आपको अर्थ देखना हो तो जैन संप्रदाय में देखें, वो है, परंतु बहुत ज्यादा सावधान। वो लोग एकदम सब कुछ सही करते हैं, एक्सेप्ट उनका लक्ष्य गड़बड़। हमारे लिए अगर एक भक्त को वो मिल जाए जिनके लिए वो कार्य कर रहे हैं, वो लोग बहुत शुद्ध है। परंतु अगर भक्त को वो मिल जाए जिसके लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं, भक्त वो चाहेगा भी नहीं, कभी नहीं चाहेगा, हमको नहीं चाहिए। एक भगवत भक्त को वो मिल जाए तो भगवत भक्त नहीं चाहेगा। वो अलग रास्ते जा रहे हैं, हम अलग रास्ते जा रहे हैं। हाँ, वो सही रास्ते चल रहे हैं, वो अपना जो लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, वो सही रास्ते चल रहे हैं, नो डाउट। परंतु फिर सावधानी पूर्वक। चलिए, ये हुई एक बात। देखिए, अक्सर एक बात रिपीट करते हैं, आज भी वो बात रिपीट करेंगे, परंतु आज वो बात कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों से रिपीट करेंगे। श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल, एक शिष्य ने कोई बात बोली, उस बात को ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे। श्रील प्रभुपाद से कभी पूछा जाता कि आप क्या करते हैं, आप सुबह से रात तक क्या करते हैं, तो उनका दो जवाब होता था। वो खुद बता रहे थे, ऐसा डिसाइपल बता रहे थे, उनका दो जवाब होता था। एक जवाब में वो बोलते थे कि हम सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवत गीता का प्रचार करते हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं, सब कोई को भगवान के बारे में बताते हैं, सब दूर दूर तक जाते हैं, सभी को भगवान के बारे में बता रहे हैं, सुबह से रात तक कार्य करते हैं, बुक लिखते रहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो ये आंसर होता था कि हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं, परंतु एक दूसरा भी आंसर होता था। वो आंसर बड़ा अमेजिंग हुआ करता था। दूसरा आंसर भी होता था, वो बोलते थे कि हम कृष्णा का नाम जप रहे हैं, हमको कोई काम करने का आवश्यकता नहीं है। देखिए, बाहर के लोग है ना, ये सुनेंगे तो सहजिया बन सकते, परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ये बात बताते हैं, डिसाइपल ये बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वो बोलते थे कि जब हम कृष्णा का नाम जप रहे हैं, सभी को तो सब कुछ तो कृष्णा ही प्रदान कर रहे हैं, हमको भी प्रदान कर देंगे। हम भगवान का नाम जपते हैं, हमको बस इतना ही काफी है। हाईएस्ट लेवल पे चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो,
चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी भौतिक जगत का कर्मी क्यों ना हो, हाईएस्ट लेवल पे, सर्वोच्च स्तर पे, उसको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि हम तो कृष्णा का नाम लेंगे, कृष्णा का नाम प्रचार करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। अब कृष्णा ही हमारी रक्षा करे, कृष्णा ही हमारी रक्षा करे। माधवेंद्रपुरी ने भी यही किया, वो कृष्णा का नाम जपते थे, कृष्णा स्वयं उनको उनको प्रसाद ला करके देते थे। है ना? अब यहाँ पे एक और बात है, और ये बात बार बार बोलते हैं क्या, ये हृदय के सबसे नजदीक होने का कारण ये है, गुरु की बातें ना समझना बड़ा मुश्किल है। किसी दिन अगर गुरु बोल दे हम तो भगवान का नाम जपते हैं, हमको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो बाकी लोग सोचेंगे ना, अरे गुरु जी हमारे कोई काम वाम नहीं करते हैं, गुरु जी बस कृष्णा का नाम जपते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं हमको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के मुख से अगर आप ये बात सुन ले, हम तो कृष्णा का नाम जपते हैं, हमें काम करने की क्या आवश्यकता है, तो आप क्या समझेंगे? हैं? समझिए इस बात को कि भक्त जो होते हैं वो एक्सट्रेसी लेवल पे होते हैं। वो तो एक्चुअली में ये बात एकदम सही है, प्लीज इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक जाने। भक्त हमेशा एक्सट्रेसी लेवल पे होते हैं। वो तो हम लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए वो निचले स्तर पे आकर के ज्ञान प्रसार करते। भक्त को नीचे स्तर पे आने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो हमेशा कृष्णा के सतत कृष्णा चिंतन में डूबे हुए हैं। अगर कृष्णा कृपा मूर्ति दूर दूर जाकर के, अमेरिका जाकर के, इधर जाकर के, उधर जाकर के नाम प्रचार नहीं करते रहते, तो कृष्णा के चिंतन में नहीं डूबे होते। वो किस लिए नाम प्रचार किए, वो किस लिए मंदिर बनवाए, वो किस लिए इतना कष्ट झेले, भौतिक जगत वाले लोगों से इतना संघर्ष क्यों झेले, क्यों झेले? क्योंकि वो नाम प्रचार करना चाहते। नाम प्रचार क्यों करना चाहते? ताकि वो बद्ध जगत के लोगों को मुक्त बनाना चाहते। बद्ध जगत वाले लोग तो नहीं समझेंगे, वो तो नहीं समझते, उनको तो लगता है पता नहीं क्यों आ गए। भक्त कहीं पे भी जाता है तो भक्तों को लगता है ये क्यों आ गया। आज बता रहे थे वो एक और बहुत बहुत अमेजिंग बात बता रहे। जब कीर्तन कीर्तन मंडली या संकीर्तन अलग अलग जगह जाता है, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे जगह होते थे कि दानवीय लोग भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते, कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और लोग क्या करते हैं हाय हाय हाय। नहीं, हमको मत सुनाओ। भौतिक जगत वाले लोग ऐसे ही करते। अगर हम भी नाम जप नहीं करना चाहते हैं, हम भी कृष्णा के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, हम भी कृष्णा के बारे में नहीं प्रचार करना चाहते हैं, तो हम भी ऐसे ही करते। गुरु प्रेम बरसाते तो हैं, गुरु प्रेम वर्षा तो कर रहे हैं, परंतु लोग स्वीकारेंगे तब तो। भौतिक जगत वाले स्वीकारते नहीं है, भौतिक जगत वाले स्वीकारते नहीं है ना। भौतिक जगत वाले कष्ट में ही रहते हैं, क्योंकि वो कष्ट को ही स्वीकारे हुए हैं, वो माया को ही स्वीकारे हुए हैं, वो झूठ को ही स्वीकारे हुए हैं,
वो असफलता को ही स्वीकारे हुए हैं, इसीलिए वो प्रेम को अस्वीकार। भौतिक जगत वाले ऐसा करते हैं। परंतु आज एक कन्फेशन या एक एक ऑनेस्ट बात भी बोलनी है। देखिए, स्थिति चाहे जो भी हो, मेरा पूर्ण प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम लोग जो भी क्लास में जान रहे हों, वो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द जो भी हैं, जो भी श्रील प्रभुपाद ने बोले हैं, उसके अकॉर्डेंस में उनने जो बोला है उसी के अनुरूप हम लोग जाने, हम लोग कार्य करें। उनसे स्वतंत्र होकर के अगर कोई बहुत बहुत समझदार व्यक्ति भी हो, अब जिसे भी समझदार जानते हो, अगर वो व्यक्ति हो और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द नहीं है, तो मुझे वो स्वीकार्य नहीं है ना। बिकॉज क्या होगा, बहुत लोग है ना, बहुत सारे एक्सेसिव भाव में बहुत सारी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि एकदम गलत, परंतु उनका एक्सटेटिक भाव एकदम सही है। उनका जो भाव है ना, वो भाव सही है, शब्द आपको गलत लगेगा। आप क्या समझिएगा, अभी हम लोग चैतन्य चैतन्य समझने का प्रयास कर रहे थे, तो चैतन्य चैतन्य में जो लिखा हुआ था वो ठीक विरोधाभासी लिखा हुआ था, एकदम उल्टा। बोले ऐसा भी है और ऐसा भी है। एकदम उल्टा कैसे सही हो सकता है? देखिए समझिए, हर बार ये बात नहीं बताएंगे, परंतु होता कैसा है, एक्सटेटिक भाव में, एक्सटेटिक भाव में वो एक्सटेटिक भाव में जो भी बात बोली जाती है वो बात हमारी समझ के परे होती है, परंतु जो एक्सटेसी में होता है वो बात गलत नहीं बोलता। जो एक्सटेसी में होता है वो गलत बात नहीं बोलता। दूर से देखने से हमको लग सकता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कैसी बातें कर, दूर से देखने से लग सकता है कि और भी शास्त्र में कैसी कैसी बातें की हुई है, दूर से देखने से लग सकता, परंतु जब आप चीजों को यथारूप देखेंगे, हैं, जब चीजों को यथारूप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो बोल रहे हैं, जो एक्सेसी में बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही। अब बताइए, बुद्धि लगा करके कैसे समझ लीजिएगा, कौन से भाव से उनकी बातों को समझ पाइएगा? कौन से भाव से उनकी बातों को समझ पाइए? नहीं समझ सकते। और जब तक इस भाव में नहीं रहिएगा, भक्ति कैसे कीजिएगा? सहजिया मालूम है क्या होता है? सहजिया ये बोलेगा, चलिए हमको ये बात नहीं समझ में आ रही, छोड़िए, हमको कृष्णा की बाकी बातें समझ में आती है, ये बातें नहीं समझ आती, हम चल रहे हैं। हम कृष्णा की बाकी बातों का पालन करते हैं, ये बात का पालन नहीं करते। गुरु की बाकी बातों का पालन करते हैं, इस बात का पालन नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हृदय के रूप से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना ही चाहिए। हाँ, उसके बाद भी हमारी इनएबिलिटी होगी, अक्षमता होगी, बिल्कुल सही है, परंतु हृदय के स्तर पे हम पूर्ण रूप से समर्पित।
हम पालन नहीं कर पा रहे क्योंकि हम में बद्धता का थोड़ा गुण है। अब देखिए वो जो बद्धता का गुण है ना, वो भी गुरु कृपा से ही हटेगा। वो भी गुरु कृपा से ही हटेगा। गुरु कृपा करेंगे तो हट जाएगा, और गुरु कृपा नहीं करेंगे तो नहीं हटेगा। भक्ति भी गुरु कृपा से ही करेंगे, और जो विकार है वो भी गुरु कृपा से ही जाएगा। परंतु ये सब होने के बाद अब हम रागानुगा भक्ति में रहेंगे। अब हम में कोई विकार नहीं है। या तो विकार भी है तो हम पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित हो गए, गुरु जाने अब हमारे पास तो ये विकार है। हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं गुरु की बातों का पालन करने का, पूर्ण रूप से हम समर्पित हैं। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति जैसे बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सेकंड हैबिट, तो सेकंड हैबिट बन गया। हमारी गलती कोई पाप है, कोई अपराध है, कोई विकार है, अब उससे कैसे निकलेंगे? वो सेकंड हैबिट से कैसे निकलेंगे? वो भी गुरु कृपा करेगी। चलो अब इसको निकाल। अब दिव्यता समझिए, जब तक ये कृपा नहीं मिले, ये कृपा नहीं मिले, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति हमारा जब तक अंतिम विकार समाप्त ना हो जाए तब तक भक्ति नहीं। सोच के देखिए, बद्ध प्रकृति के साथ भक्ति होगी। हमारी प्रकृति बद्ध है, हमारे में बद्धता है। अब ये बद्धता के साथ भक्ति होगी, दोनों एक साथ। मलिनता के साथ स्वच्छता होगी। ये गुरु कृपा करेंगे तो मलिनता हमारी जाएगी, है ना। हमको क्या करना है? हमको आज्ञा पालन करने का प्रयास है। कृष्णा हमसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आज्ञा पालन नहीं करते। कृष्णा हमसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भौतिकता के नशे में डूबे हैं, माया के नशे में चूर है ना। आज बहुत बहुत बड़ी बात जाननी, आई होप सभी को समझ में आया बद्ध जगत से कैसे निकलना। ये गुरु कृपा चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। हम तो अपना प्रयास कर लेंगे, हमारा सेकंड हैबिट तो निकलेगा नहीं। जन्म जन्मांतर से जो गलतियां चलती आ रही है वो तो निकलेंगी। ऐसे आपको एक सरल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं है और मैं आपको गंदगी वाला एग्जांपल अभी देना नहीं चाहता। हमारा जीव का जो विकार है, आज भी ये इच्छा है ना कि अगर स्वाद वाला सुस्वादु प्रसाद मिल जाए तो हम पाना चाहते हैं, और अगर कड़वा या कुछ ऐसा बेस्वाद कोई चीज मिल जाए तो हम नहीं पाना चाहते हैं। यस नो? सच सच बोलिए, यस नो? सुस्वादु मिल जाए, जीभ को अच्छा लगना चाहिए, है तो हम पा लेंगे। और सुस्वादु नहीं मिले, जीभ को अच्छा नहीं मिल रहा, हमको पाने का मन नहीं करता है। अब बताइए ये विकार है कि नहीं है? ये विकार है कि नहीं है? अगर कृष्णा प्रसाद है, कृष्णा का भोग लगाया हुआ है, कृष्णा ने पाया हुआ है, अब चाहे वो खट्टा हो, कड़वा हो, मीठा हो, तीखा हो, सादा हो, नहीं हो, ऐसा हो, वैसा हो, हम क्या उसमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? सुस्वादु है तो पाएंगे, जीभ का स्वादु नहीं है तो नहीं पाएंगे। ये विकार नहीं है, और ये विकार क्या हमारे प्रयास से चला जाएगा? अभी भी आप लोगों का जीभ, फिर से एक और क्वेश्चन,
आप लोगों की जीभ की लोलुपता, जीभ का जो नशा है, जीभ जो अच्छा अच्छा पाने का, जो भौतिक जगत में टेस्ट को अच्छा बोला जाता है, जो अच्छा अच्छा भौतिक जगत में टेस्ट है ना, फिर से टेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट पाने का हमारा जो इच्छा था, वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है? जब से कृष्णा के बारे में जान रहे, कम हुआ है कि नहीं हुआ? यस नो? झूठ नहीं चाहिए मेरे को, झूठ नहीं, झूठा झूठा यस नहीं चाहिए, सच सच यस, यस बोलिए तो सच वाला, हुआ है नहीं हुआ है? एक बात बताइए, आपने प्रयास किया था क्या? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, आपने प्रयास किया था? आपने प्रयास किया था कि आपका जीभ का स्वाद कम हो जाए, आपका जीभ का स्वाद शुद्ध हो जाए, हैं? अब ये क्या है? ये गुरु कृपा से होता है, ये गुरु कृपा से होता है, आपके आपके प्रयास से नहीं हुआ ये। और जब तक ये जीभ का स्वाद जाएगा नहीं, तब तक कृष्णा क्यों चाहिए? कृष्णा प्रसाद में कुछ कड़वा मिल जाए, आप पाइएगा। अब तो जीभ के स्वाद कड़वा, बेस्वाद कुछ मिल जाए, कुछ सूखा खाने को मिल जाए, सूखा, गले में एकदम सूखा, खाया नहीं जा रहा, गटका ही नहीं जा रहा है, पाइएगा। हम तो जीभ में लोलुप है ना, अभी भी लोलुपता है, पहले से बहुत कम हो गई होगी, परंतु अभी भी तो है, अभी भी शून्य तो नहीं हुई। ये कैसे जाएगा? गुरु आज्ञानुसार कार्य कीजिए, गुरु की कृपा पाइए, धीरे धीरे नष्ट होगा, है ना? लोग जानते हैं ना कि हम सभी को, हाँ, अनर्थ निवृत्ति, ये भी अनर्थ है। और ये तो जीव का जो बताया ना, बहुत ही सरल बताया है और बहुत अच्छा बताया है। ऐसे ऐसे विकार हैं, आप लोग स्वयं अपने अंदर देखिए क्या क्या विकार, कितने घृणित घृणित विकार बैठे हुए हैं, कितने घृणित विकार बैठे हुए हैं। क्या उससे निवृत्त नहीं होंगे? हम भक्ति करेंगे, करेंगे, हैं? करेंगे, हैं? भक्ति करेंगे। अगर विकार से निवृत्त नहीं होंगे, विकार हमारे कम नहीं होंगे, तो भक्ति करेंगे। देखिए एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, आप लोगों को क्लैरिटी, पूर्ण रूप से क्लैरिटी है। आप अपने प्रयास से जीव का विकार कम नहीं किए, और जीव नहीं है, आप देखेंगे, आप खरीदने का पैसा जहां पे खर्चते हैं, हर जगह देखिए, पहले जहां पे इंद्र तृप्ति के लिए था, वहां पे इंद्र तृप्ति के लिए पैसा खर्चते थे, अब इंद्र तृप्ति के लिए पैसा नहीं खर्चना चाहते। ये आप अपने प्रयास से नहीं किए, ये अपने आप स्वतः होते चला गया। और जब तक पूर्ण रूप से हमारे इंद्र तृप्ति करने का भाव समाप्त नहीं होता है, हम कृष्णा की भक्ति नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति करने का भाव समाप्त होना ही पड़ेगा, चाहे वो जीभ से इंद्र तृप्ति करना हो, चाहे और तरीके से इंद्र तृप्ति करना हो। बहुत सारे घृणित इंद्र तृप्ति करने का भी होता है, वो सारा इंद्र तृप्ति शून्य होना चाहिए। ये सब कुछ अपराध है, जो भी हमें कृष्णा से दूर ले जाए वो अपराध है। आपको लगता होगा कोई सजा तो नहीं मिलता, मिलता है। हम मॉल जाते हैं तो कोई सजा तो नहीं मिलता, मॉल जाते हैं तो अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद करके लाते हैं, वाह अच्छा अच्छा ड्रेस, परंतु अच्छा अच्छा ड्रेस मतलब अच्छा अच्छा का अर्थ समझ लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। उससे क्या होगा? फिर इंद्र तृप्ति और बढ़ेगी ना, इंद्र तृप्ति और बढ़ेगी तो बद्ध जीवन में और प्रविष्ट होंगे ना, और आगे बढ़ेंगे ना। बद्ध जीवन में और आगे बढ़ेंगे तो इसी भौतिक जगत के दलदल में फंसते चले जाएंगे ना। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा सब कुछ गुरु का हो जाता है। अब जैसे कोई जाकर के मॉल जाकर के खरीदने का प्रयास करे, तब भी गुरु की वाणी याद करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। क्या गुरु मेरे इस प्रकार के, चलिए एक, आई शुड नॉट यूज दैट एग्जाम्पल, मेरे को 2 डिवोटी बता चुके हैं, ठीक है, और मेरे को एक्चुअली में ऐसा मतलब बात
करने का मेरा इच्छा नहीं है, परंतु आप समझ जाइए मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत डिवोटीज है ना, पहले जब भक्ति में नहीं थे तो रिवीलिंग कपड़े पहनते थे। वो स्वयं एडमिट किए कि अब उस प्रकार का शॉपिंग करने का कोई इच्छा नहीं होता। अब हम नहीं खरीदते, पहले हमारी बहुत इच्छा होती थी। मैं चाहता भी नहीं हूं, माताएं प्लीज इसका जवाब मत दे। मैं हर बार बोलता हूं जवाब दीजिए, आज मैं बोल रहा हूं जवाब मत दीजिए, है ना। एक अक्सर ये रिवीलिंग कपड़े वाला कहानी तो माताओं का ही होता है, पुरुषों में भी विकार होता है, परंतु ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप यहाँ पे आंसर करें। सत्यता स्थापित करने के लिए मुझे आपका खुद का कन्फेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। पर्सनली आपको मैसेज करना है बिल्कुल करते रहिए, उसके लिए आप स्वतंत्र। परंतु समझिए ये विकार स्वतः समाप्त हुआ ना, अपने आप समाप्त हुआ ना। आप लोग अपने चैट में मत लिखिए, परंतु स्वतः समाप्त हुआ ना। धीरे धीरे कृष्णा की बातें सुन रहे हैं, गुरु क्या चाहते, अब हमको सारा कार्य गुरु के अनुरूप करने का पूर्ण प्रयास करते रहना, बस बस, और कुछ नहीं। जीवन सफल हो जाए, है ना, जीवन सफल हो जाए। देखिए समझिए, सब में अनर्थ होता है, अलग अलग प्रकार के अनर्थों से निकलिए अनर्थ, है ना। अब देखिए सबकी बीमारी अलग अलग है, सबकी बीमारी अलग अलग, परंतु जब तक हम अनर्थ निवृत्ति नहीं कर रहे, देखिए फिर से समझिए प्रोसेस क्या है। हमको भगवत नाम, हरे कृष्णा महामंत्र जब करके ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी, परंतु मात्र हरे कृष्णा महामंत्र जब करके भगवत प्राप्ति नहीं होगी। उसके साथ हमको अनर्थ निवृत्ति भी करना है। हमको जो नियम है उनका पालन भी करना है। हमको हरि गुरु वैष्णव की कृपा भी चाहिए, और सबको इनकम्पास करने के साथ हमको उत्साह भी चाहिए। प्लीज इसका कोई पिक्चर बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अश्लेषा माता जी आपको वीडियो बाद में देख लीजिएगा, उसका पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा, या खुशी माता जी आप बनाने का कोशिश कीजिए, दोनों बनाने का कोशिश कीजिए, कोऑर्डिनेट कर। और ये सब क्या है, ये सब कैसा, अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त, अहंकार मुक्त। जब हम ये सब करेंगे, हरि गुरु वैष्णव की कृपा चाहेंगे, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। और इन तीनों में भी, हरि गुरु वैष्णव में भी हमको सबसे ज्यादा कृपा गुरु की चाहिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए सबसे ज्यादा कृपा गुरु की चाहिए, ठीक है। गुरु कृपा से ही अनर्थ निवृत्ति होगी, गुरु कृपा से ही अनर्थ निवृत्ति होगी, नहीं तो अनर्थों से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। क्लास जब स्टार्ट हो रहा था तो मैंने सोचा था 2 मिनट बात करेंगे, उससे ज्यादा का कोई बात था नहीं। क्या वो 2 बात बोले थे, वो 2 बात बतानी थी, ये इम्पोर्टेंट था। आज एक्चुअली में जो आज हम लोगों ने जाना, अगर हम वो जीवन में लगा दें, मेरे को नहीं लगता उसके बाद कुछ बचेगा। परफेक्ट, है ना। परंतु
जब जीवन में लगा देंगे तो बारंबार प्रयास करना पड़ेगा, बारंबार प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास से ही हम जितना प्रयास करेंगे ना, उतना ज्यादा गुरु कृपा मिलेगा, उतना ज्यादा हम भगवत सेवा करने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान के प्रिय बनने का, भगवान के प्रिय बन ही जाएंगे जब प्रयास करेंगे। कृष्णा तो प्रयास के फुल नंबर देते हैं, अगर हमने शुद्ध प्रयास किया तो नंबर तो मिल जाएंगे। परंतु फिर से सेवा भी गुरु के अनुसार, कार्य भी गुरु के अनुसार, आदेश भी गुरु का पालन, जो भी हम कर रहे हैं भक्ति में, जो भी कर रहे हैं गुरु के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, कृष्णा के अनुसार, है ना। हरे कृष्ण। चलिए जल्दी जल्दी अब हाँ श्रीमद् भागवतम भी समझने का दो तीन श्लोक पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, है ना। जिन को रीड करना कृपया हैंड रेज करें। राघव प्रभु जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप भौतिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तात्पर्य, भगवान की सर्वसत्ता के विरुद्ध नास्तिकों का तर्क है कि यदि ईश्वर प्रकट और अंतर्ध्यान होता है और सोता तथा जगता है, तो फिर जीवात्मा तथा ईश्वर में अंतर ही क्या है। यहाँ पर ध्रुव महाराज जीवात्मा भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। वे इस प्रकार के अंतर बतला रहे हैं। भगवान शाश्वत मुक्त हैं। वे जब भी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे कभी भी प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बंधते नहीं, अतः मुक्तिधीश कहलाते हैं, जिसका अर्थ है तीनों गुणों के स्वामी। भगवद गीता 7.14 में कहा गया है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुर्जया। समस्त जीवात्माएं प्रकृति के तीनों गुणों से बंधी हुई हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु 3 गुणों के स्वामी स्वरूप भगवान इन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से सदैव मुक्त रहते हैं, अतः वे विशुद्ध हैं। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, भौतिक जगत के कल्मश का परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख और धूर्त हैं, वे मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं, किंतु वे मेरे परम भावम को नहीं जानते। परम भावम का अर्थ है कि सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, उन्हें भौतिक कल्मश नहीं व्यापता। भगवान एवं जीवात्मा का अंतर यह है कि जीवात्मा सदैव अंधकार में रहता है, भले ही वह सतोगुण में स्थित हो, किंतु तो भी वह अनेक बातों से अनजान रहता है। किंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में तथा प्रत्येक जीव के हृदय में जो कुछ घटता है उसको जानने वाले हैं। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, विदाहम समतीतानि। भगवान आत्मा के अंश नहीं, वे अक्षर परमात्मा है, जबकि जीवात्माएं उनके भिन्नांश हैं। जीवात्मा दैव माया के निर्देश से इस जगत में प्रकट होने के लिए बाध्य हैं, किंतु जब भगवान को प्रकट होना होता है तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति अथवा आत्म माया से प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवात्मा का भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल होता है, जिसके जीवन का प्रारंभ होता है, उसका जन्म होता है और बद्ध अवस्था में उसके जीवन का अंत मृत्यु से आता है। किंतु भगवान तो आदि पुरुष हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इन आदि पुरुष गोविंद को नमस्कार करते हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, जबकि इस भौतिक सृष्टि का आदि है। वेदांत कहता है, जन्माद्यस्य यतः। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, किंतु इसका जन्म नहीं होता। वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं,
अद्वितीय प्रकृति के स्वामी हैं। उनकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती और समस्त सृष्टि के पालनकर्ता होकर भी वे पृथक रहने वाले हैं। जैसा कि वेदों में कठ उपनिषद 2.2.13 में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतन श्रेत नाम। भगवान परम पालन करता है। जीवात्मा यज्ञ द्वारा उनकी सेवा के निमित्त हैं, क्योंकि वे समस्त यज्ञों के फलों के वैध भोक्ता हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वचनों से उनकी भक्ति में लगे। जीवात्माओं की यह मूल स्वाभाविक स्थिति है। सामान्य जीवात्मा की निद्रा की तुलना कारणार्णव में भगवान के शयन से नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में जीवात्मा की तुलना परम पुरुष से नहीं की जा सकती। मायावादी दार्शनिक समझौता न कर सकने के कारण शून्यवाद या निर्गुणवाद के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए एक पिता है और एक पुत्र है। पुत्र बोल रहा है कि पिताजी आप सोइएगा तभी मैं सोऊंगा। पिता देख रहे हैं कि पुत्र तो परेशान हो रहा है, उसको नींद आ रही है, पर वो बोल रहा है कि पिताजी आप सोइएगा तभी सोऊंगा, ऐसे तो नहीं सोऊंगा। ऐसी जिद करते हुए आप लोगों ने भी अपने पिता से कभी जिद हो सकता है किया, है ना? हाँ, किया है तो जल्दी से यस लिखिए। आप सोइएगा तभी सोएंगे, है? या फिर आप खाइएगा, आप प्रसादम पाइएगा तभी पाएंगे। ऐसे नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं पाएंगे। हमको भूख लग रही है, हमको नींद आ रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं पाएंगे। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं होता पिता प्रसादम पाते हुए दिख जाए या प्रसादम पाने की एक्टिंग करे। बहुत लोग क्या होता है कि पेट भरा हुआ है, बोलेंगे पाओ तो क्या करता है, दिखाने के लिए पा रहे हैं, फिर बैठ गए, तो 10 निवाला खाया, फिर 1 निवाला खा लिया, है ना? या फिर सोने की एक्टिंग करें, तो उसका अर्थ ये नहीं होता पिता को भी भूख लग रही है, पिता को भी नींद आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं होता। जो कृष्ण, जिनकी दृष्टि पल भर के लिए अगर कोई भी जगत से हट जाए, वो जगत का अस्तित्व हट जाएगा। जिनकी दृष्टि इस प्रकार की है, जिनके देखने मात्र से ही जगत जीवित रह रहा है, वो हमारे जैसे सोएंगे क्या? जिनके खिलाने से हम जिंदा हैं, वो हमारे जैसे खाएंगे क्या? तो मूर्खता में हम लोग क्या समझते हैं, अपने जैसा समझ लेते हैं। देखिए, यही दिव्यता है, और एक्चुअली में सब कुछ कर लीजिएगा, सब तो समझ में आ जाएगा, ये कभी नहीं समझ में आए। जो शुद्ध भक्त होंगे ना, वो इस प्रकार का कार्य करेंगे कि भगवान मेरे खिलाए बिना तो भूखे ही रहेंगे, भगवान मेरे सिलाए बिना तो सोएंगे ही नहीं। और सच में भगवान नहीं सोएंगे, सच में भगवान नहीं खाएंगे, भगवान भूखे रह जाएंगे अगर उनके शुद्ध भक्त उनको ना खिलाए, तो भगवान भूखे रह जाए। द्रौपदी महारानी का एक दाना चावल का कृष्णा को अति प्रसन्न कर दिया, परंतु जब तक एक दाना नहीं मिला था, भूखे तो थे। ये कृष्णा का दिव्य प्रेम है। वो हमसे हमारा प्रसादम नहीं चाहते, धन नहीं चाहते, हमारा केयर भी नहीं चाहते, वो तो हमसे हमारा प्रेम चाहते।
भौतिक जगत वाले अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता कि भगवान सभी के नियंत्रक हैं। परंतु दिव्य प्रेम में स्थित जो हो जाते हैं, उनकी आंखें प्रेम से भर जाती हैं, और जब प्रेम से भर जाती है तो बाकी चीजें सुझाई नहीं देती, बाकी कुछ समझ में नहीं आता। जब कोई भक्त इस प्रकार से प्रेम में डूब जाता है तो भगवान भी उसके साथ इसी प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं कि भगवान भी उसी प्रकार से प्रेम में डूब जाते हैं। ये प्रेम संबंध सदैव चलता रहे। जब तक ये प्रेम संबंध चल रहा है, जब तक ये प्रेम संबंध में सब स्थापित है, स्थित है, तब तक तो सब कुछ अच्छा है। और जैसे ही ये प्रेम संबंध को छोड़ करके हम कुछ भी और करने लग जाए, हमको दुखी मिलेगा। इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है कि जो आत्मा राम है, जो सभी को सब कुछ प्रदान कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी पाते हैं कृष्णा को अर्पित करते ही हुए पाइए। कुछ लोग अगर प्याज लहसुन पा रहे हो, अगर संभव हो सके तो वो छोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं जानता हूँ कुछ कुछ भक्तों को अभी भी कष्ट, मैं रिक्वेस्ट करते रहूंगा, प्रे करते रहूंगा। और सच में इसमें संशय मत रखिएगा। मैं जानता हूँ लोगों को है ना बहुत बड़े बड़े कष्ट भी, इसमें संशय मत रखिएगा। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद शांति से बैठे हुए नहीं, वो चुपचाप बैठे हुए नहीं है। और जब आपके कष्टों को देख रहे हैं तो वो निवारण भी ढूंढ रहे, और निवारण वो देंगे, है ना, निवारण देंगे। और कोई भी भक्त कष्ट में है और गुरु पे पूर्ण रूप से आश्रित है, आप क्या समझते हैं अगर कोई भी कष्ट में हो और वो गुरु को बोले नहीं तो भी गुरु को पता नहीं है क्या? बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल नहीं आए क्या? आप लोगों ने बताया नहीं है कि आप कष्ट में है, मेरे को पता नहीं चला है क्या? आपके बोलने के बावजूद मेरे को पता है, नहीं बताने के बावजूद। समझ, गुरु ऐसे छोड़ते नहीं है? छोड़, आपने गलती से भी गुरु पुकार लिया, अगर सच में एक बार के लिए भी पुकार लिया तो जैसे कृष्णा नहीं छोड़ता वैसे गुरु भी नहीं छोड़ता। अब क्या होता है ना, लोग अस्वीकार कर देते, फिर गुरु की बातें कोई काम नहीं करती ना, शिष्य पे गुरु की बातें कोई काम नहीं करती। परंतु इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि अगर आप कोई कितने भी बड़े कष्ट में हो, अगर गुरु के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित हैं तो गुरु आपकी समस्या से आपको निकालेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता गुरु छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता गुरु छोड़ देंगे, है ना। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो तो अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 भगवत गीता श्रीमद् भागवत जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का हरे प्रचार कृष्णा करते प्रभु जी। रहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी किसी कुछ भी जिज्ञासाएं हो वो पूछ सकते हैं। अश्लेषा माता जी आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए और आप अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए और यस, अगर आपको सुनना हो तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है। हरे कृष्ण। यस, अश्लेषा माता जी की कुछ बहुत ज्यादा कुछ निर्धारित कर्तव्य है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। तो समझिए, ऐसा नहीं कर सकते ना कि वो पूर्ण रूप से प्रयास कर रही हो सभी का और मैं छोड़ दूं, कोई बात नहीं माता जी अभी आधा घंटा और बैठ जाइए, आधा घंटा में क्या जाता है, ठीक है ना, 1 मिनट भी अगर उनका बच सकता है बचाने का पूर्ण प्रयास करें। आज के दिन कष्ट है, सब दिन नहीं। चलिए, किन्हीं का कोई जिज्ञासा है। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। कीर्तन सुने फिर। आज कीर्तन नहीं कर रहा, आज बोलना थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बोलना ज्यादा नहीं हो गया, मतलब आज सारी बातें जो है ना वो प्रयास किया, हृदय की गहराइयों से ही बताया, एकदम शुद्धता से। थोड़ा सा भी इधर उधर मलिनता वलीनता कुछ, थोड़ा सा भी कुछ भी इधर नहीं, सब कुछ जो भी बेस्ट हो आपके लिए वो बताया। यह बहुत है ना, बहुत बार इजी अप्रोच होता है ना, सिंपल चीज होती है वो बता देते हैं, वो बताना थोड़ा आसान होता है। आज बहुत डिफिकल्ट चीजें जानी, तो वो बोलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो इजी चीजें होती है ना, इजी का मतलब है जो शास्त्र का रेफरेंस मिल जाए वो इजी है। शास्त्र का कहीं पे रेफरेंस मिल जाए वो वापस से उद्धृत करना है, शास्त्र में बोला गया है, जैसे कृष्णा ने भगवत गीता में ये बोला, तब बहुत आसान हो जाता है, वो बात बहुत आसान हो जाती है। परंतु जो बताया था ना रागानु का भक्ति, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, उसको प्रस्तुत कर पाना है बड़ा मुश्किल। रागानु का भक्ति तो एक भाव है, एक स्थिति है, उसको कैसे प्रस्तुत कीजिए, बड़ा मुश्किल। चलिए, तो फिर कीर्तन सुनते हैं और 21 मिनट अब कीर्तन सुनते हैं। यस, चलिए, अच्छा कीर्तन लगाएं, सभी को अच्छा लगेगा। चलिए, कीर्तन सुनिए, ठीक है। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो चैट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एंड से पहले आंसर करें। अभी तो नहीं करेंगे, पर एंड से पहले आंसर करेंगे। हरे कृष्ण।